Good morning, students. Students, today I am here with a new concept, and the concept is control and coordination in plants. So, students, I want to tell you in detail that control and coordination also occurs in case of the plants too. In case of the plants also respond against stimuli, and these stimuli might be light, touch, gravitational force, and some other stimulus. Okay, so for control and coordination, plants have two different mechanisms by which they can show control and coordination. So, students, I want to tell you that what are these two ways for control and coordination which are utilized by plant. The first way the plants are going to use it is called as uh, movement, plant movement, and there are two types of plant movements. And the first one, plant movement, is called non-directional, or these are growth independent movement. So the another name of these movements is called as nastic movement, NASTIC. While the other kind of movement which plants are showing are called directional movements, और these are also referred as growth dependent movement, यानी growth से इनका लेना देना है. And either these are called as tropical movements too. तो we can say there are two types of movements which our plants are showing. The first one is growth independent, जिनका growth से कोई लेना देना नहीं है, या नॉन डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है. या थर्ड इनको बोलते हैं नास्टिक, NASTIC, नास्टिक मूवमेंट भी इनको बोलते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट होता है, मिमोसा प्लांट भी बोलते हैं इसको, हिंदी में छुई मुई भी बोलते हैं या लाजवंती भी बोलते हैं. अगर आपने देखा होगा, अगर आप टच मी नॉट प्लांट को अगर आप टच कर देते हैं या छुई मुई को आप टच करते हैं तो ये अपनी लीव्स को श्रिंक कर देता है, विल्टिंग शो करता है उसमें. तो इनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपको टच के अगेंस्ट. ठीक है, तो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी इसको बोलते हैं. अगर आप इसको टच कर रहे हैं तो टच से जो वर्ड है उसको लिए वर्ड थिग्मो वर्ड यूज़ करते हैं. नास्टिक मतलब ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट. ठीक है, तो सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड थिग्मोनास्टिक मूवमेंट shown by the लाजवंती or the chui mui plant. So actually they reduce the water from their cells, and due to it they are going to shrink or they are showing wilting. While the another kind of movements which are towards or against the stimuli are called tropical movements, or these are called as directional movements, or we can say that these are growth dependent movements. ठीक है, the another kind of control coordination is takes place by the some electrochemical substances which are referred as phytohormones, because phyto word is for plants and hormones means certain chemicals which are released in small quantities and are utilized for control and coordination process. So plants में दो तरह से control and coordination होता है. पहला मैंने बताया आपको प्लांट मूवमेंट की मदद से. दो तरह के प्लांट मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट या ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, या वी कैन से दैट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. दूसरा मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल मूवमेंट या ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या डायरेक्शनल मूवमेंट्स. या ठीक है, सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट. तो इस तरह से अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो है स्टिमुलस. एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज स्टिमुलस, एनी काइंड ऑफ change either in the internal environment of the body of the organism or internal environment of the body of organism which brings about various physiological or behavioral responses is called stimulus. तो यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर या अंदर के इन्वायरमेंट में आने वाला चेंज जो उसमें जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म कई सारे फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को देता है, उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं. So as I mentioned earlier that plant response towards the external stimuli may be of different types. तो पहला मैंने आपको बताया कि आपका जैसे नास्टिक मूवमेंट आपका शो कर इसका एग्जांपल है. देयर आर वेरियस टच सेंसिटिव प्लांट्स लाइक मिमोसा प्लांट. ठीक है, विच शो क्विक रिस्पॉन्स टू द टच एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई. इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में आपका स्टिमुलस मिल रहा है. एंड ड्यू टू इट दे शो फोल्डिंग अप एंड ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स लाइक टच मी नॉट या मिमोसा प्लांट, मैंने आपको उसको बोला था. ठीक है, सम दीज आर द सम responses against the external stimuli. Now I am coming to the next one kind of movement which are shown by plants, and these movements are called as directional movements. And directional movements are also called as tropical movements. And there are four types of tropical movements which are shown by plants. Very quickly I am going to discuss these. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल मूवमेंट, तो आप बोलोगे दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट और दीज आर द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट शोन बाय प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी स्टिमुलाई आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अगेंस्ट द स्टिमुलाई. यानी ये डायरेक्शनल मूवमेंट या ट्रॉपिकल मूवमेंट प्लांट्स
जिनको परफॉर्म करता है वो ऐसे मूवमेंट है जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में भी हो सकते हैं या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, यानी टुवर्ड्स द स्टिमुलाई भी हो सकते हैं या अगेंस्ट द या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई भी हो सकते हैं। तो अगर ये मूवमेंट आपके टुवर्ड्स द स्टिमुलाई हो रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव मूवमेंट है। अगर ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई हो रहा है मूवमेंट तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपका क्या है, नेगेटिव ट्रॉपिकल मूवमेंट है। तो एज आई मैंशन अर्लियर, तो आपको 4 तरह के यहाँ पे ट्रॉपिकल मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आपका होता है फोटोट्रॉपिज्म, यहाँ पे स्टिमुलस का काम करता है सनलाइट। दूसरा होता है जियोट्रॉपिज्म, हेयर द स्टिमुलस इज ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉपिकल मूवमेंट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, हेयर द स्टिमुलस इज वाटर, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉइल। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म, सर्टेन chemicals are here in case of stimuli, ठीक है। So I am talking about the phototropism. In case of the phototropism, the plant, it's a kind of movement of the plants, ठीक है, in response of sunlight। तो यानी फोटोट्रॉपिज्म अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे इट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट और द ट्रॉपिकल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ सनलाइट। सो वेरी इजीली वी कैन से दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, बिकॉज रूट्स जो है हमेशा सनलाइट से अवे चलती हैं, दूर की ओर चलती है। तो वी कैन से दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट आर शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, वाइल द स्टेम और द शूट सिस्टम और द लीव्स आर शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर फिगर में भी दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि कैसे जो स्टेम है वो सनलाइट की ओर बढ़ रहा है और कैसे रूट्स सनलाइट से अवे डायरेक्शन की ओर मूवमेंट कर रही हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और आपके सामने रखूँ। आप एक डार्क रूम ले लीजिए जिसपे कि एक विंडो हो, आप विंडो को खोल दीजिए, आप देखोगे कुछ समय बाद जो प्लांट उस कमरे में रखा गया है, जो उसका स्टेम है, इट स्टार्ट्स टू बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट। तो खिड़की के पास जो रखा हुआ प्लांट है, आप देखोगे वो प्लांट जो है उसका सूट जो है वो सनलाइट की डायरेक्शन में बेंड हो जाता है और मूवमेंट करना स्टार्ट होता है। एक्चुअली वो बेंड क्यों होता है, इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है, ठीक है। ड्यूरिंग सिंस वी नो दैट द एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द शूट टिप। तो एपिकल मेरिस्टेम में एक हार्मोन बनता है, प्लांट हार्मोन, उसका नाम होता है आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एंड ये ग्रोथ हार्मोन जो है आपका बेसिकली आपका जिसको हम बोलते हैं प्लांट के केस में जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, जो प्लांट के केस का जो ग्रोथ हार्मोन है उसे बोलते हैं ऑक्सिन। तो ऑक्सिन नाम का हार्मोन जो होता है, ये ऑक्सिन यहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है और सिंथेसाइज होने के बाद ये नोड्स की ओर पास होता है जो कि डार्क या शेडी एरियाज़ में है। तो उन शेडी एरियाज़ के जो नोड्स के पास ये जो आपका ऑक्सिन है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, तो स्टेम वहाँ से बेंड हो जाता है एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट। तो आपका जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज जियोट्रॉपिज्म। Geotropism is a kind of directional movements in response of gravity of the earth and तो आप देखेंगे कि द रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्योंकि रूट्स हमेशा ग्रेविटी की ओर बढ़ती हैं एंड स्टेम ऑलवेज शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। द थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉपिकल मूवमेंट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, सिमिलर टू द जियोट्रॉपिज्म। We can say that the roots are always moving towards the water, or they are regularly growing downwards in the search of the water. So we can say that roots are showing positive hydrotropism, while stem is always growing away from the water resource. So water stem shows negative hydrotropism. And the last one is chemotropism. Chemotropism is a movement of plant, ठीक है, in response of certain chemicals. So we can say that the very good example of chemotropism is the pollen pistil interaction and germination of the pollen tube or formation of the pollen tube after the pollination process. तो एक्चुअली होता क्या है, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलिनेशन होने के बाद देर आर सर्टेन केमिकल्स विच आर रिलीज बाय द ओव्यूल। और तो ओव्यूल जो कि आपका प्लांट के ओवरी के अंदर होता है और स्टिग्मा के ऊपर आपका पॉलन लैंड होता है, तो उस पॉलन से एक ट्यूब डेवलप होती है जो सीधे स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाती है। तो यानी कि वो एक केमिकल को डिटेक्ट करता है और उस केमिकल की डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। तो इस तरह से जो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट का जो फिनोमिनन है वो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ द मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द केमिकल, सो वी कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव chemotropism. So in this way we discussed about different types of plant movements, what are nastic movements and what are tropical movement. I think this is enough for today. Thank you, bye bye and have a nice day.